Assalamu alaikum everyone, welcome back to Asima Jawaz Legal Alchemy. Today we will embark on a journey of unlocking the legal wisdom by exploring the significance, purpose, application and examples of legal maxims. So join me as we unravel the profound uses, importance, purpose of these principles in the legal landscape. सो हम इसका अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, किन चीज़ों में यूज़ होता है, एग्जाम्पल्स, सब चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल मैक्सिम्स कि लीगल मैक्सिम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत रखते हैं ये. First point is that they contribute to legal stability by providing a common language for legal professionals. तो हमें पता है कि जो lawyers होते हैं जब वो कोर्ट्स में अपने arguments plead करेंगे उसमें वो जो है legal maxims को use करते हैं. So that is a common language for legal professionals. They serve as guiding principles for judges, lawyers and scholars ensuring a consistent and predictable legal framework. So वो guide भी करते हैं judges, lawyers को obviously when they are making a decision. तो legal maxims जो हैं वो आपको सिचुएशन क्लैरिफाई करने में और राइट डिसीजन लेने में भी मदद करते हैं. दे आर फाउंडेशनल इन लीगल डिस्कोर्स. इसका मतलब ये है कि लीगल मैक्सिम जो हैं वो एज इन फंडामेंटल हैं, ज़रूरी हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जब हम फील्ड ऑफ लॉ के बारे में डिस्कशंस करते हैं. दे ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरेंस फॉर लीगल प्रिंसिपल्स. लीगल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ दैट दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर लीगल डिसीजंस. तो ऑब्वियसली व्हेन जजेस आर डिसाइडिंग अ केस तो वो जो है लीगल मैक्सिम्स को भी यूज़ करते हैं सपोर्ट देयर जजमेंट एंड डिसीजंस बाय दिस. Next thing that we have is legal maxims as a GPS. By this I mean that maxims are like a GPS for the law because they guide judges and lawyers through tricky decisions. तो इसका मतलब ये है कि जैसे GPS जो है हमें हेल्प करता है कि हम नेविगेट कर सकें रोड्स को बाय प्रोवाइडिंग क्लियर डायरेक्शंस. तो इसी तरीके से लीगल मैक्सिम जो है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जजेस को, लॉयर्स को जब टफ डिसीजंस उनको बनाने होते हैं. तो they help to navigate them by providing a clear direction that what decision they should make. So that's why I have compared maxims with GPS because maxim जो है वो हमारे पास established principles होते हैं, rules होते हैं और ये आपको legal matters में जो है help करते हैं. Just like हमारे पास जो GPS होता है that guides us on the right path when we are driving. Second thing here is Francis Bacon insight. So in the previous lecture we saw like the philosophers take on this, what was their point of view regarding these legal maxims. So according to Francis Bacon, he said that maxims are not just like for decision making but they are to correct mistakes and to improve how we understand laws. So by this we can see the significance, the importance of legal maxims के वो कितने ज़रूरी हैं क्योंकि according to him जो maxims हैं वो सिर्फ decision making में हमें मदद नहीं करते बल्कि जो हैं हमसे कोई गलती हो जाए उसको correct करने में भी और to understand the law better कि हम किस तरह लॉ को समझ रहे हैं तो उसको समझने में भी इम्प्रूव करने में मदद करता है लीगल मैक्सिम्स के एप्लीकेशन. Now again we have some little bullet points that what is the important significance of legal maxims. ये आपको legal reasoning और decision making जो है आपकी shape करते हैं. They are guiding principles, ये आपको guide करते हैं. They are interpretive tools, मतलब इसका कि वो आपको law के जो पीछे इंटेंशन है, इंटेंट जो है वो अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं. वो आपको फ्रेमवर्क देते हैं कि आप कंसिस्टेंट लीगल इंटरप्रिटेशंस कर सकें. दे एक्ट एज प्रेसिडेंट एंड ट्रेडिशन, मतलब कि वो जो हैं आपके लीगल प्रेसिडेंट और ट्रेडिशंस हैं उनमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं. वो स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं आपके लीगल सिस्टम में और वो लीगल सर्टेनिटी को भी प्रमोट करते हैं by giving stable arguments when we use the legal maxims, and they also are very important for the fairness and equity कि अदल इंसाफ जो है वो कायम रहे by giving obviously the right decision. So the next thing that we have is purpose of legal maxims. पर्पस बेसिकली वो चीज़ होती है, रीज़न होती है, वो वजह होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ की जाती है, एग्जिस्ट करती है. तो अब हम देखेंगे कि लीगल मैक्सिम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं. What is like the purpose, what is the reason for it.
फर्स्ट वन इज़ गाइड लीगल रीजनिंग एंड इंटरप्रटेशन। जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो लीगल रीजनिंग है उसको वो गाइड करते हैं और हाउ टू इंटरप्रेट द लॉज वो हमें हेल्प करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स असिस्ट ग्लोबल कोर्ट्स इन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग लॉज फेयरली एंड रीजनेबली। जैसे कि हमने देखा था कि लीगल मैक्सिम जो है एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं यूज़ होते बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं अपने लीगल फ्रेमवर्क में लीगल सिस्टम में इसको यूज़ करती है। तो वो जो है कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं, मतलब उनको हेल्प करते हैं कि वो जो लॉज हैं उनको फेयरली और अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। दे ऑल्सो प्रोवाइड फाउंडेशनल ट्रुथ्स अबाउट द लॉ। They are used in decision making. They are used to convey complex legal ideas in a few words. काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ होती है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन लीगल मैगज़ीन वहाँ पे दे एड टू हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट स्टफ इन अ फ्यू वर्ड्स, क्योंकि जो लीगल मैगज़ीम्स होते हैं वो हमारे पास छोटे से फ्रेजेस होते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स लीगल आइडियाज़ होते हैं उनको फ्यू वर्ड्स में जो है कन्वे करने में बहुत हेल्प करते हैं। And the last one is that they enable the resolution of issues before the courts in an effective manner. तो obviously जब judges जो हैं अपनी judgment में legal maxims का use करेंगे तो वो जो हैं they can resolve the issues जो मसले मसाइल हैं about the case in an effective manner. नेक्स्ट थिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लीगल मैगज़िम्स इन लॉ। हमने पहले देख लिया मैगज़िम्स का सिग्निफिकेंस कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसका पर्पस क्या है, किस वजह से होते हैं। अब हम देखेंगे कि लीगल मैगज़िम्स किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है लॉ में हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ इंटरप्रटेशन ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये है कि जो लीगल मैगज़िम्स हैं वो आपके जो लॉज होते हैं, लीगल प्रोविजंस होती हैं, उनको समझने में आपकी मदद करते हैं। सेकेंड वन इज़ लीगल आर्ग्यूमेंटेशन। सो तो लीगल मैगज़िम्स हमारे पास हैं, दे काइंड ऑफ सर्व एज अ परसुएसिव टूल इन लीगल आर्ग्यूमेंट्स। परसुएट करने के लिए जज को अपने आर्ग्यूमेंट में लॉयर्स जो हैं लीगल मैगज़िम्स का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो आर यूज एज एजुकेशनल टूल्स। इसका मतलब ये है मैगज़िम्स एड इन टीचिंग फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑल्सो। They also guide us in contractual matters and they are also employed in contract law to interpret agreements. इसका मतलब ये है कि लीगल मैगज़िम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो एग्रीमेंट्स हैं उनको समझने में जो है गाइडेंस मिल सके, हमें जो है क्लियर प्रिंसिपल्स का समझ आ सके एंड जो कॉन्ट्रैक्चुअल मसले मसाइल होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने में भी मदद देते हैं ताकि फेयर और कंसिस्टेंट आउटकम्स निकल आएँ जो कि अदलो इंसाफ पे मुबनी हो। Okay, so now coming towards the last thing of this lecture, that is examples of legal maxims. अब हम legal maxim जो हैं, कानूनी मकूले जो हैं, उनकी हम examples देखेंगे क्या हैं। हमने उसकी significance, importance देख लिया है, उसका uses देख लिया है, उसकी purpose, application सब कुछ देख लिया है। अब हम दो examples को देखेंगे briefly. So the first one is ubi jus ibi remedium. इसको ट्रांसलेट करें जब हम इंग्लिश में तो ये है व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। इसका मतलब ये है कि जब किसी का कोई लीगल राइट हर्ट किया जाता है तो उसको कंपनसेशन ज़रूर मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन हुआ है सो दे हैव अ लीगल राइट टू सीक अ रेमेडी, और वो रेमेडी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस और इंजंक्टिव रिलीफ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी किस्म का भी लीगल राइट जो है उसकी खिलाफवर्जी की जाए तो उसको मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। सेकंड वन इज़ इंजूरिया साइन डेमनम। इसकी ट्रांसलेशन इन इंग्लिश वुड बी इंजरी विदाउट डैमेजेस। सो ये लीगल मैक्सिम उन सिचुएशंस को डील करता है जहाँ पे वायलेशन ऑफ लीगल राइट होती है, इंजरी कॉज की जाती है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंजरी देयर इज़ नो एक्चुअल डैमेज। फॉर एग्जांपल, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, कोई फिजिकल डैमेज जो है अगर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल फॉर दिस मैगज़िम वुड बी द एशपी वर्सेस वाइट केस। द होल वीडियो फॉर दिस केस डिटेल एक्सप्लेनेशन इज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन सर्च इट। और खैर मैं इसका समरी बता देती हूँ कि उसमें क्या था। तो उसमें ये हुआ था एक्चुअली कि जो मिस्टर एशपी है ही वॉज डिनाइड हिज राइट टू वोट बाय द रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर वाइट। और एशपी जो है जिन कैंडिडेट को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोट करना चाहते थे वो जीत गए थे, बट वो खुद वोट नहीं दे सके थे, तो उन्होंने जो है क्लेम की कॉम्पनसेशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। तो कोर्ट ने जो है उनको असिस्ट किया और इस लीगल राइट को एक्सेप्ट किया, और जो मिस्टर वाइट है उनको डैमेजेस जो हैं पे करने पड़े मिस्टर एशपी को। और इट वाज हेल्ड कि जो अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और अगर आपकी कोई उसमें आपको कोई फाइनेंशियल कोई फिजिकल
लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो लीगल राइट का वायलेशन है तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा। सो एचपी वर्सेस वाइट केस में मिस्टर एचपी का लीगल राइट टू वोट वाज वायलेटेड, जिसका उनको कॉम्पेंसेशन मिला था। And yeah, that's it about today's lecture. Thank you so much for joining me in today's lecture about legal maxims. We have explored its significance, application, purpose, and examples, everything. And yep, there is an exciting news for you guys that I am starting a new series. और उसमें हम ऐसे करेंगे कि हम one by one एक एक मैक्सिम जो है उसको पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे कि उसका मतलब क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसकी रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशन देखेंगे और होपफुली हम लोग जो है वन लेक्चर में वन मैक्सिम को जो है वो कवर करेंगे। एंड वी आर गोना continue this series, so let me know what do you guys think about it. I am sure that you guys are going to enjoy this and you will learn a lot. So don't miss this enlightening series. It's totally worth watching, I assure you, inshallah. And yeah, do remember to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. It means a lot to me. Thank you for being a part of my channel, and let's unlock the wisdom within each legal maxim one at a time, inshallah. Until next time, this is me, Asima Jawad, signing off. Take care, stay curious, and keep on learning. Allah Hafiz.